Hello students, in previous videos of the French Revolution, we have discussed that what is French Revolution and about political causes of the French Revolution. Here in this third video of the French Revolution, we will discuss about social causes of the French Revolution. As you all know that society of France was divided into three parts, as it is known first state, second state and third state. What is first state? Actually, state means barton or domain, or you can say proprietorship. In Hindi, it is known as Riyasat, Jagir. But here, we will try to understand that first state means the people of first category, प्रथम श्रेणी के लोग हैं, and the second state, people of second category of France, and in third state, we will know the third category of people of the France. So here, under first state, there were higher clergy and then lower clergy. Higher clergy means clergy, then archbishop, abbot and bishops. These three known as higher clergy. In lower clergy there were father and fathers. Too many clergy were working for churches. Some clergies were working as a priest and some were helping them. So the clergy who were occupying higher place in France, they were known as higher clergy, and lower clergy were helping them, working with them. In second state, there were also three groups of people, three sections of people known as country nobles, official nobles, and then court nobles or courtiers. Who were country nobles? The people, landlord, who were living in a countryside, in villages. They were known as country nobles, people of nobility, aristocratic people, people of higher class society, and then official nobles who were working and on high post of the France for monarchs, for government, and then court nobles. They were courtiers, they were living in court of monarch Louis XVI as court nobles. But these all were highly prosperous people of the France. Now, third state, there were businessmen, court officials, lawyer, administrators, officials, farmer, artisans, labor and servants. Actually, there were also two parts of society, two sections of society were living together as educated and uneducated people were together, in which as you can see that court official, they were literate, educated, lawyer, administrators, they were educated, but servant, labor and peasant farm, they were not educated or not highly educated people. Actually, ये जो थर्ड स्टेट है, इसी को फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण माना जाता है, क्योंकि जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट है वो लुईस 16 के जो सबसे खास थे वो थे हायर क्लेर्जी एंड देन लोअर क्लेर्जी, जो उनके साथ रहते थे, चर्चेस का जो कार्य करते हैं, जो वहाँ प्रिस्ट होते हैं, पुजारी होते हैं, प्रेयर कंडक्ट करते हैं. They were occupying higher place, prestigious place in France. Sorry. And second state people,
They were also landlord, aristocratic people, people of higher society, wealthy, prosperous people, जिनका भी फ्रांस में इन क्लेर्जीज के साथ अच्छा तालमेल था। ये दोनों फर्स्ट और सेकेंड स्टेट एक साथ थे, कार्य करते थे और फ्रांस की शासन सत्ता व्यवस्था का भरपूर एक तरह से शोषण करते थे, जिसमें कि थर्ड स्टेट को बिल्कुल अलग कर दिया गया। फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के जो लोग थे फ्रांस के, वो अलग थे, उनका लाइफ स्टाइल अलग था, उनका जीवनचर्या अलग था, उनका जो लैविश लग्जरियस स्टाइल था वो अलग था। जबकि थर्ड स्टेट के लोग, they were not as much as prestigious and prosperous and as second state and the people of third state were. यहाँ जो डिस्कंटेंट डिससेटिस्फैक्शन था थर्ड स्टेट के मन में, वो ये था कि जो इनके ऊपर टैक्सेशन सिस्टम, जो टैक्स लगाया जाता था, वो काफी हैरान करने वाला था इनके लिए, क्योंकि एक्चुअली ये लोग इसमें ज्यादातर गरीब लोगों का ही एक तरह से सेक्शन था। आप देख सकते हैं सर्वेंट, लेबर, फार्मर, बट जो टैक्सेशन सिस्टम था वो इनको ज्यादा प्रभावित करता था फ्रांस का, न कि फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के लोगों को। एक्चुअली द फॉर्म ऑफ सोसाइटी ऑफ द फ्रांस वाज फ्यूडल। वहां पे एक तरह का फ्यूडल सिस्टम था, सामंतवादी व्यवस्था था। कौन था सामंतवादी लोगों में सबसे श्रेष्ठ? वहां सबसे श्रेष्ठ सामंतवादी लोगों में सबसे ऊपर माना जाता था, एट फर्स्ट देयर वेर किंग लुइस 16, then under him there were feudal like higher clergy, lower clergy and people of nobility, noble people। सेकेंड स्टेट के लोगों का दूसरे नंबर पे ये वहां पे फ्यूडल थे। आफ्टर दैट सर्वेंट, पीजेंट्स, ये आते थे सबसे निचली कैटेगरी में। एज यू कैन से द थर्ड कैटेगरी बिजनेसमैन, कोर्ट ऑफिशियल। बट देयर वर टू डिवीजन। इनमें भी कुछ पढ़े लिखे लोग थे, बिजनेसमैन थे, कोर्ट ऑफिशियल थे, लॉयर थे, जो कि थर्ड स्टेट में ही थे। एक्चुअली व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्यूडल? फ्यूडल का मतलब क्या है? ये क्या होता है फ्यूडल? FUDAL। फ्यूडल is connected word with feudalism। feudalism एक शब्द है जिसको हिंदी में बोलते हैं सामंतवाद, सामंतवाद। then what is feudalism? feudalism was a way of structuring society around relationship that were derived from the holding of land in exchange for service or labor। ये फेडरलिज्म शब्द जो है 9th सेंचुरी से जो है आया। 9th सेंचुरी से 15th सेंचुरी के बीच में पूरे यूरोप में, ऑल ओवर यूरोप, देयर वर सिस्टम ऑफ फेडरलिज्म बिटवीन 9th सेंचुरी टू 15th सेंचुरी। यह मध्यकाल का समय माना जाता है, मध्य काल का समय, मेडिवल हिस्ट्री, मेडिवल टाइम माना जाता है। इसी के बीच में फेडरलिज्म, सामंतवाद यूरोप और खासकर इंग्लैंड में था। इसका मतलब था जिसमें कि सर्वोच्च पद और जो लैंड था सब कुछ राजा के हाथ में होता था, राजा के पास में सर्वोच्च शक्ति होती थी। एंड हिज विल वाज लॉ। उसकी जो विल थी, जो उसकी इच्छा थी, वही कानून बनती थी। सुप्रीम पावर इज इन हैंड ऑफ किंग, मोनार्क, एंड अंडर हिम देयर वेर क्लेर्जीज एंड नोबल्स, जिनको फ्यूडल सिस्टम की कमांड दी जाती थी, जिनको सामंतवाद माना जाता था। एंड अंडर देम पीजेंट, सर्वेंट, वर्कर, दे हैव टू वर्क फॉर देम।
उनके लिए काम करना पड़ता था। सामंतवादियों के लिए बदले में इनको क्या मिलता था? फ्यूडल को उनसे सर्विस मिलता था, लेबर मिलता था, लीगल प्रोसीजर उनको मिलता था, सेफ्टी मिलता था, मिलिट्री का शासन जो था उससे उनको सहयोग मिलता था, उनकी रक्षा की जाती थी। इन द प्लेस ऑफ सेफ्टी, सर्विस एंड लेबर, ये जो फ्यूडल सिस्टम है उनको अपनी जमीन जो थी पूरी की पूरी देनी पड़ती थी नोबल्स और क्लेर्जी को। नाउ वी विल नो अबाउट सिस्टम ऑफ लैंड। एक्चुअली जो फर्स्ट स्टेट है इसकी संख्या थी 1 लाख, केवल 1 लाख लोग थे जिसमें हायर क्लेर्जी लोअर क्लेर्जी के परिवार थे, पर इनके पास 5% लैंड था टोटल फ्रांस का। देन सेकेंड स्टेट जी, इनका जो पॉपुलेशन था वो 4 लाख था, 4 लाख, जबकि इनके पास 10% लैंड था। ऑन अदर हैंड थर्ड स्टेट 95% पॉपुलेशन था, थर्ड स्टेट का 95% पॉपुलेशन, जबकि इनके पास लैंड नहीं था, या था भी तो बहुत ही कम था। So student, it was main reason, main causes of dissatisfaction and revolution of the France। फ्रांस की क्रांति का यही मुख्य कारण था कि थर्ड स्टेट के लोग काफी असंतुष्ट थे इस डिस्क्रिमिनेशन से, बिकॉज देयर वेयर डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन थर्ड स्टेट एंड फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट। काफी भेदभावना जो है इनके खिलाफ थी। देयर वेयर नो लिबर्टी, नो फ्रैटर्निटी एंड नो इक्वालिटी इन फ्रेंच society or society of the France। Over here we have discussed about social causes. Thank you. See you again in next video. Thanks.